Hello, dear friends. Good morning once again. I heartily welcome you in today's morning online class. Dear friends, our topic today is models and the active and passive voice of models. Before the beginning of this class, I would like to share an inspirational thought with you. Dear friends, Lord Buddha says that whatever you do in your life, it can be hard, it can be difficult, but it can't be impossible. So, we should work very hard to whatever we are doing. One more thing I would like to share with you, dear friends, that in this very critical time, you, me, and the whole world, we are facing a never before situation. But I really appreciate your appetite for learning and your thirst to achieve your goal. So, the students from Dwarka, students from Saputara, Waghai, Ahwa, and far remote areas, I am very surprised they are reaching to this class, and I feel very much happy. My heart leapt with joy when I see all your efforts that you are doing, that you are making to get access, to have an access to the online classes. I also talk to your parents, to your brothers, sisters, and I am very happy that they are sharing their mobiles with you. They are doing their level best to keep you in touch with the teachers. So, what I feel personally, my dear friends, that your future will be very much bright. And in this connection, we will begin now our today's morning class. So, this is on models. Okay, fine. Now, I have made certain slides for you today also. This is our English class, and we will see active voice and passive voice. See the two roads, active voice here and passive voice. You have one more poem also, The Road Not Taken, and the active voice and passive voice. Okay, fine. So, in active voice, just have a recap, my dear friends. In active voice, what is active? Yes, I have told you the subject is active. So, in active voice, what subject does is mentioned, and in passive voice, the focus is on the action and not onto the noun or the subject. For example, very simple example, Ram killed Ravana. So the passive voice of this sentence is Ravana was killed by Lord Rama. So there are, now we will see the passive voices of models. So just, dear friend, just see, have a look at what models are. Models क्या होते हैं? Models are the very special words. Models are the auxiliaries. Models are the helping verbs of future tense.
मॉडल्स क्या है? मॉडल्स फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है। तो सिर्फ शाल और विल नहीं, शाल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब। तो शाल है, विल है और कैन है, मान लीजिए, तीन। तो इसके पास्ट टेंस के क्या हो जाएंगे? शुड, वुड और कुड। मे का क्या हो जाएगा? माइट। ओके, तो ये सब के सब क्या है? मॉडल्स है। तो मॉडल्स आपके लिए कोई नई बात नहीं है। तो हियर इज a लिस्ट ऑफ सम मॉडल्स: कैन, मे, माइट, कुड, शुड, ought to, must, would, have to, used to. ओके, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, shall, should, ought to, must, need, dare. There are some more. Okay. Have to. Okay. Has to. Had to. Okay, used to. All these are models. Okay, and the very important thing I would like to share with you in this very special class is that all the models, जो कोई भी मॉडल है, हर मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। अगर ये बात आपके समझ में आई, you can make thousands of sentences using models. हर मॉडल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। और मॉडल की और एक खास बात है, मॉडल की एक खास बात ये है कि मॉडल जो है, जब किसी सब्जेक्ट के सामने आते हैं तो ये नहीं देखते कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट का जेंडर क्या है, वो तो कोई भी वर्ब नहीं देखता है जेंडर क्या है। ठीक है, सी है, ही है, तो मान लीजिए वी है, दे है, तो सिंगुलर है, प्लूरल है, मनीष है या चिल्ड्रेन है या राहुल है, कुछ भी है, तो सबके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। और मॉडल भी जो है ये नहीं देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। मतलब दे के बाद भी कैन आता है, वी के बाद भी कैन आता है, आई के बाद भी कैन आता है, सी के बाद भी कैन आता है, ही के बाद भी कैन आता है। समझ रहे आप? यस। तो सब जो है ये क्या है? ये मॉडल्स है। ओके, मॉडल वर्ब्स। अब फिर एक बार देख लीजिए इसका यूज क्या है मॉडल्स का। मॉडल जो है फ्यूचर एक्शन शेयर करते हैं हमारे साथ, कोई भी फ्यूचर एक्शन। देखिए हम एक सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं कि इट मे रेन, मतलब बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है आज, है ना। इट कैन रेन, है ना। आपको बादल दिख रहे हैं आसमान में तो आप बोलेंगे इट कैन रेन। ओके, इट विल रेन, ये सारे के सारे फ्यूचर टेंस है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है ना। इट में रेन में कोई वो अच्छी शक्यता बता रहा है, इट कैन रेन में जो है वो एबिलिटी टाइप की बात करता है ना। मतलब बारिश हो सकती है, बादल बादल आसमान में दिख रहे। इट विल रेन मतलब बिल्कुल आसमान में बादल पूरे भर के आ गए तो बोलेगा श्योरली इट विल रेन। एंड देयर आर सर्टेन more examples also. So can, could, had, better, may, might, must, ought to, shall, should, will, would, be able to, and there are several, है ना। अभी आपको मैंने बताया जैसे have to, okay, has to, had to, used to, all these are examples of model auxiliaries। ये सबके सब क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज है ना। हमने जब देखा था ना, एक चार्ट हमने देखा था कि कौन से वर्ब्स है। वर्ब्स एक तो मेन वर्ब होते हैं, है ना, मतलब राइट, गो, वेंट, ये सारे मेन वर्ब हो गए हैं। ऑक्सिलरीज कौन से ऑक्सिलरीज के पार्ट कौन से हैं? टू बी के वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर। टू हैव के वर्ब हैव, हैज और हैड। टू डू के वर्ब डू, डज और डिड। और इसके अलावा एक और होते हैं, वो होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके, तो ये उसके एग्जांपल्स है। आई कैन गो टू द मीटिंग टुमारो, देखिए फ्यूचर एक्शन बता रहा है, टुमारो से हमारे समझ में आता है कल जा रहा है, मतलब फ्यूचर एक्शन। शुड आई टेक द टॉफेल टेस्ट विथ यू, शुड मतलब क्या मुझे तुम्हारे साथ टॉफेल के क्लासेस ज्वाइन करने चाहिए। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी कैरी दिस, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी चीज़ों को कैरी कर सकता हूँ।
ये कर सकता हूँ क्या, वो कर सकता हूँ क्या, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मॉडल्स का लेसन हम सेपरेटली जब पढ़ेंगे तो विल गेट एवरीथिंग, बट टुडे वी विल सी द पैसिव वॉइस। ओके फाइन। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, मॉडल्स का फॉर्मूला क्या है, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला फॉर। तो एक्टिव वॉइस में कैसा होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है प्लस, हाँ क्या होता है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट होता है प्लस मॉडल होता है, ठीक है, कोई भी मॉडल, कैन, कुड, मे, माइट, उसके बाद V1 होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये है जनरल सेंटेंस मॉडल्स का, ठीक है, कोई भी। तो मॉडल में क्या हो सकते हैं, शाल, विल, मे, कैन, कुड, माइट, शुड, वुड, यूज टू, नीड टू, कुछ भी। क्लियर है, कोई भी मॉडल, चाहे प्रेजेंट टेंस का मॉडल चाहे पास्ट टेंस का मॉडल, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट टेंस का मॉडल मीन्स शाल, विल, मे, कैन, पास्ट टेंस के मॉडल मतलब ये पास्ट टेंस के मॉडल है, ओके, ये नीड टू प्रेजेंट टेंस का मॉडल है, समझ रहे ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सारे के सारे मॉडल्स ये है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस कैसे होता है, ऑब्जेक्ट को पहले ले लेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है, प्लस मॉडल, प्लस जैसे कहीं आपने बीइंग लगाया था, कहीं आपने बीन लगाया लगाया ना, यहाँ लगता है सिर्फ बी, क्या लगता है, बी, ओके। और V3 और बाय प्लस सब्जेक्ट, जैसे ही कैन विन दिस मैच, इसका पैसिव वॉइस होता है, दिस मैच क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, दिस मैच कैन बी वोन बाय हिम। देखिए कैन है तो कैन, कुड है तो कुड, इफ देर इज माइट देयर शुड बी माइट ओनली। पैसिव वॉइस में भी माइट ही रहेगा, मे का माइट नहीं हो जाएगा, ध्यान में रखना कभी भी। कैन का कुड नहीं हो जाएगा, फिर कुड का क्या करेंगे, कुड का कैन नहीं करना है, तो जो है वही यूज करना है। शाल है तो शाल, विल है तो विल। इसीलिए हम थोड़ी देर बाद इसका फ्यूचर टेंस भी देखेंगे जो इसी से इंटरकनेक्टेड है। दिस मैच कैन बी वोन बाय हिम, तो ये क्या है, इसका पैसिव वॉइस। समझ में आया, कैन है तो कैन, विल है तो विल, मे है तो मे, माइट है तो माइट। आगे सिंपल फ्यूचर टेंस बिल्कुल यही है, ये देखिए इसमें सब्जेक्ट प्लस शाल, विल प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस में होगा। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शाल, विल या बी, यहाँ पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ओके। और VPV मतलब थर्ड फॉर्म, ओके। यहाँ पे अब देखिए, माई पेरेंट्स विल टेक अस टू द पार्क, तो अस जो है मैंने क्या बताया था, बिल्कुल वर्ब को लग के जो है ऑब्जेक्ट आता है, तो अस का हो गया वी, तो यहाँ आ गया वी विल बी टेकन, टेक का क्या हो गया, बी लग गया, विल बी टेकन टू द पार्क बाय आवर पेरेंट्स। समझिए अच्छे से, वी विल बी टेकन टू द पार्क बाय आवर पेरेंट्स, ओके। आगे इसके चेंजेस कैसे होते हैं, देखो, सी विल राइट ए पोएम, अ पोएम विल बी रिटन बाय हर, ओके, ध्यान देना अच्छे से। सी विल नॉट राइट ए पोएम, अ पोएम विल नॉट बी रिटन बाय हर, विल सी राइट ए पोएम, इसको छोड़ दीजिए। यू विल रिसीव द लेटर विल बी रिसीव्ड बाय यू, देखिए यू लास्ट में आया। दे विल अरेंज द मनी विल बी अरेंज्ड बाय देम, विल है तो विल ही रहेगा, विल का वुड नहीं होगा, ये बता रहा हूँ मैं। सिर्फ वर्ब का कहाँ चेंज होगा, जो थर्ड फॉर्म का वर्ब है उसमें चेंज, मतलब थर्ड फॉर्म में वर्ब को, मेन वर्ब को आपको थर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, और उसको नोटिफाई किसने किया है, बी ने। ये देखिए हर जगह क्या आया है, ये देखिए बी, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, हर जगह बी आएगा, ओके फाइन। आगे फ्यूचर टेंस फिर से, आई शैल राइट ए लेटर, अ लेटर शैल बी रिटन बाय मी, सीता विल हेल्प अस विद द मनी, वी, अस का हो जाएगा विल, देखिए अस का वी,
वी शैल बी हेल्प्ड बाय सीता विथ मनी। द टीचर विल टेल अस ए स्टोरी। देखिए फिर से अस आया, या ये स्टोरी को सामने लेंगे। दो वर्ब है ना यहाँ पे, दो ऑब्जेक्ट है ना, दो ऑब्जेक्ट में से कोई भी। देखिए कैसा बनाए, बहुत सुंदर बनाए। अ स्टोरी विल बी टोल्ड टू अस बाय आवर टीचर, या और भी अलग तरीके से बन सकता है, वी आर टोल्ड ए स्टोरी बाय आवर टीचर। वी विल बी टोल्ड ए स्टोरी बाय आवर टीचर, ऐसा भी बन सकता है। दे विल अप्रूव ऑफ आवर वर्क शैल बी अप्रूव्ड ऑफ बाय देम। द पुलिस विल अरेस्ट द कल्प्रिट्स विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। ओके, एकदम आसान है। विल को एज इट इज रखना है। फिर देखते हैं मस्ट का कैसे होता है। इसमें सब्जेक्ट हटा दिया है। आई मस्ट क्लीन द हाउस, तो यहाँ पे देखिए आई मस्ट क्लीन द हाउस में ये द हाउस जो है इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब देखिए द हाउस को सामने ले, द हाउस मस्ट बी क्लीन्ड। अब यहाँ आएगा बाय मी। आई कैन क्लीन द हाउस कैन बी क्लीन। आई शुड क्लीन द हाउस शुड बी क्लीन। आई कुड क्लीन द हाउस कुड बी क्लीन। ये जानबूझ के आपको इसलिए यहाँ पे मैंने बताया है कि कैन है तो इधर भी कैन आएगा, शुड है तो इधर भी शुड रहेगा, कुड है तो यहाँ भी कुड रहेगा, अगर यहाँ मे है तो यहाँ पर भी मे रहेगा, माइट है तो इधर भी माइट रहेगा, हैव टू है तो यहाँ पर भी हैव टू ही रहेगा। हैव टू है ना, मतलब ऑब्जेक्ट बदल गया तो हैव टू होगा या हैज़ टू होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। हैव टू हैज़ टू का हैड टू नहीं हो जाएगा, मे का माइट नहीं हो जाएगा, या माइट का मे नहीं होगा। समझ रहे ना। और इस तरीके से ये चेंजेस होंगे। थोड़ा अच्छे से आप समझ लीजिए और अच्छे से। हाँ, ये सारे के सारे चेंजेस नहीं होंगे आगे। तो एक एक मॉडल देख लेते हैं। थोड़े थोड़े एक एक मॉडल। एक फॉर्मूला सेम है सबका फॉर्मूला सेम है ना। क्या फॉर्मूला है ये देखिए, यहाँ से फिर से एक बार देख लेते। ये सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मॉडल कोई भी हो सकता है। फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, अब एक्टिव वॉइस। सी कैन सॉल्व दीज सम्स। ओके, ये देखिए कैसे बनाए। ये दीज सम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय हर। सी कैनॉट सॉल्व दीज सम्स। दीज सम्स कैनॉट बी सॉल्व्ड बाय हर। ओके, क्वेश्चन मार्क का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके फाइन, आगे कैन का देखिए। ही कैन ड्राइव ए कार, अ कार कैन बी ड्रिवन बाय हिम। ही कैनॉट ड्राइव ए कार, अ कार कैनॉट बी ड्रिवन बाय हिम। कैन ही ड्राइव ए कार, कैन ए कार बी ड्रिवन बाय हिम। ही मस्ट लर्न दिस बुक। देखिए मस्ट का मस्ट भी हो जाएगा। दिस बुक मस्ट बी लर्न बाय हिम। देखिए ये क्या है इसका, दिस बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। ही का यहाँ क्या हो गया, हिम हो गया, यहाँ बी आ गया। ये V1 है, यहाँ V3 हो गया। ओके, आगे ही मस्ट नॉट लर्न दिस बुक, दिस बुक मस्ट नॉट बी लर्न बाय हिम। आगे मे का मे और मे बी। सी मे ईट एन एप्पल मे बी ईटन बाय हर। सी मे नॉट ईट एन एप्पल मे नॉट बी ईटन बाय हर। मे सी ईट एन एप्पल, मे एन एप्पल बी ईटन बाय हर। आगे माइट का भी इसी तरीका का यूज है, शुड का भी इसी तरीके से,
टू का भी इसी तरीके से है। ओके, आई शुड बाय दिस क्लॉक शुड बी बॉट बाय मी। एकदम इजी वो है सब। हाँ, ओके, तो ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स है। फॉर्मूला जो है इसका बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है आपको। ओके, और यहाँ पे जो है आपके लिए मैंने एक क्विक एक्सरसाइज यहाँ पे बनाई है। ओके, वो एक्सरसाइज आपको तुरंत करके लाना है। देखो, पहला यू मे फॉरगेट द रूल्स क्विकली, है ना। तो यहाँ पे देखिए द रूल्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है वो सामने लिया। ये देखिए यहाँ पे मे है मॉडल इसका, तो मे आया। फिर क्या लगाना है हमको, बी लगाना है, बी लगा दिया। फॉरगेट V1 है, तो यहाँ पे V3 आ गया, फॉरगॉटन और क्विकली आ गया लास्ट में। ओके, इस तरीके से ये 5 और आप बना लीजिए, और उसके बाद जो ये एक्सरसाइज है ये आप एक्सरसाइज करके आज मुझे भेज दीजिए। ओके, वेरी गुड। So thank you very much for watching this lesson, and I'm sure that you will like this video also, like my previous videos. So thank you very much. May God bless you. Thank you so much.